Hi everyone, welcome back to my YouTube channel The Corporate Didi, and in this video I'm gonna share you each and everything about Infosys round 2 preparation, how you have to prepare, everything I'm gonna share. And the best part of this video is this: I am gonna share you free PDF and a mock test which will definitely help you out to give your exam on 5th or 6th of September. So guys, without wasting time, we will move forward. But the very first thing that I would like you guys is that make sure you subscribe my channel, and guys, this is my humble request to like this video and share it with your friends. And if you find this helpful, do let me know in the comments, because in this video I am going to share you the PDF that is totally free of cost. I am not even charging a single penny. You can see that, like, let me show you this is the PDF which I am gonna share with you. These are the two PDFs basically. In this we have the mastery coding solutions, in which I have kept all the questions which are very important apart from their answers. And also there is one more PDF, that is this one, in which I am having each and everything. Like, it's a huge PDF. The first one that I showed you is consisting a very concise strategy, and this is the very descriptive PDF that I will be sharing you with you all, you guys, without charging even a single rupee. So without wasting time, we will move forward and we'll see what are all the things that you should know about this exam. So what you have to do, first of all, you have to understand the round 2, how you have to understand. So the coding assessment is expected to test your problem solving ability. So you have to make your question, like, you have to answer properly each and every question. There will be 3 kind of questions: easy, medium and hard, and you will get around 3 hours. Okay, now what should you prepare first? So the very core topics that each and every one of you should prepare is, the very basic is array, string, hashing, linked list, stack, queue, sorting, searching, binary search, 2 pointers and sliding window. These are the very core topics that you should at least cover. Okay, so if you are having your exam on 5th or 6th, then make sure to cover these topics. Okay, and before moving ahead, I would like you to please make sure you have subscribed my channel so that you won't miss the further updates. And in this video only, I am gonna share you a drastic life-changing tip that will help you out, in which I will share you how you have to attempt the questions. मैं उसको एकदम proper हिंदी में समझाने वाली हूँ, because obviously we can relate each and every emotions when we speak in हिंदी कि हाँ भाई ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है. So make sure you watch this video till end. Okay, then comes the next topic, that is intermediate topics. In that you have to prepare greedy algorithms, intervals, scheduling problems, matrix problems, basically binary search. So okay, so these things you have to prepare. Now comes the third one, that is the advanced topic. So advanced topic is something, यदि आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आई वुड से डोंट टच इट. ओके, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा. उससे अच्छा बेटर है कि आप इजी एंड मीडियम क्वेश्चंस बना के आओ, हार्ड वाला छोड़ दो. ठीक है, in that we will be having dynamic programming, graph, tree and backtracking. So these are the things that you have to prepare. This is the overall thing. Now comes the best part. There will be 3 problems. I just told you, easy होगी, medium होगी and hard होगी. So easy problem जो होती है, that is the main coding question in which you can actually score good. If you are passing all the test cases, then you have a good chance. Okay, then medium वाला जो होता है वो around 50 से less% of बच्चे कर पाते हैं. ठीक है, so that is something जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा, यदि आप effort करते हो, then your chances of getting selection are more. Then comes the hard problem. So hard problem is such thing जिसको 10 to 20% स्टूडेंट्स ही सॉल्व करके आ पाते हैं. ठीक है, सो डोंट ट्राई टू सॉल्व द हार्डेस्ट कोड एट द वेरी फर्स्ट टाइम. सबसे पहले यू हैव टू सॉल्व द ईजी वन. ओके, नाउ the most important strategy is partial progress. So one mistake most of the candidates do, instead of thinking progressively, like basic solution kiya, then working code, test case and optimization. So if you can develop a correct brute force or partially optimized solution, submit it. I would say just submit it and secure whatever the test cases are getting passed. Don't wait for like that, nahi bhai mera to 8 on 8 test case pass hone chahiye, 12 on 12 pass hone chahiye. No, don't do that. Okay, just jitna बन रहा है, जितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, just submit it, because at the end moment you will not be able to solve each and everything. ठीक है, तो इसलिए जितना केस सॉल्व हुआ उसे सबमिट कर दो. Now comes the next part.
हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल वीक. सो अभी मैंने आप लोग को जो PDF दिखाए हैं, आई विल गोना शेयर दैट PDF विद यू. उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग वो PDF डाउनलोड कर लो और प्रॉपर उसको पढ़ो. जो फर्स्ट PDF है दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट वन, उसको आप हफ्ते भर पहले पढ़ो. जो सेकेंड PDF है दैट इज़ अ वास्ट वन, इसमें HR क्वेश्चंस भी हैं. सो उसको आप आराम से पढ़ सकते हो. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लो. एरे, स्ट्रिंग, हैशिंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग, इन सब की. ठीक है. सेकेंड थिंग क्या करना है, बाइनरी सर्च पे फोकस करो, ग्रीडी एल्गोरिथम्स पे फोकस करो, इंटरवल्स पे फोकस करो, मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है. ठीक है. थर्ड फेज में क्या करना है, DP, ग्राफ्स, ट्रीज, ये सब पे फोकस करना है. ठीक है. अब फाइनल फेज पे क्या करना है, पढ़ना छोड़ देना है. ठीक है. बिल्कुल पढ़ना छोड़ देना है. कोई न्यू मटेरियल अपना यूज़ नहीं करना है. जो पढ़ा है आज तक या जो आपने आज तक प्रिपेयर किया है, सिर्फ उस पर फोकस करने का. एंड फुल लेंथ कोडिंग मॉक्स को लगाने का. ठीक है. मैंने जो PDF है उसमें एक फुल लेंथ कोडिंग मॉक भी दे रखा है. सो ट्राई टू सॉल्व दूस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल. ओके. नाउ अब मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे करना है कि दीदी हम कैसे अपना मॉक टेस्ट दें, क्या करें. सो जस्ट ट्राई टू थिंक कि हाँ भाई, मैं वही मॉक टेस्ट जो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ वही मैं देने बैठा हूँ. सो आपको क्या करना है, हर मॉक टेस्ट के बाद ये चेक करना है विच क्वेश्चन टुक दी मच टाइम, किस में आपको कितना टाइम लगा, कौन से टॉपिक में आप फंस गए, क्या ऐसा हुआ आप एरे के टॉपिक में फंस गए या किस टॉपिक में फंसे, तो उसको दोबारा रिवाइज करने का. ठीक है. देन इनकरेक्ट अप्रोच यदि यूज़ किया तो उसको एनालाइज करो. कोडिंग में मिस्टेक्स कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कहीं ना कहीं इंडेंटेशन एरर कर रहे हो या नॉर्मल बहुत सिंटेक्स की एरर कर रहे हो, देन यू हैव टू एनालाइज दैट पार्ट एज वेल. ठीक है. एज केस यदि फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या मैंने ध्यान नहीं दिया या क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा या नहीं समझा. सो यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स ट्रैक. ठीक है. इन सब का ट्रैक बनाओ, देन इट विल बी हेल्पफुल एट द एग्जाम टाइम. ठीक है. अब मेन पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट. बहुत बार ऐसा होता है, लाइक टू बी ऑनेस्ट, जैसे आई जस्ट टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि टुडे आई एम नॉट गाइडिंग यू एज अ मेंटर कि हाँ मैं भाई आती हूँ तुम लोग को पूरा इंग्लिश में बड़बड़ करके चले जाती हूँ. नो, आज मैं आपको एज अ एक्सपीरियंस आई वुड से लाइक कॉर्पोरेट दीदी, ठीक है, एज अ सीनियर सिस्टर ही तुम लोग को बता रही हूँ. मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज अ फ्रेशर, दिस हैपेंस. ओके. मैंने, और दिस इज़ नॉट फॉर अ फ्रेशर लेवल, इवन आज भी लाइक आई एम डूइंग अ जॉब इन अ वेल नोन MNC. तो यहाँ होता है कि भाई ये कोड क्यों नहीं चल रहा, हाउ, ये तो मुझे आता था, ये कैसे फंस रहा है. सो एट दैट टाइम व्हाट वी डू, वी स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट. ठीक है. नहीं भाई मैं तो उसको करके रहूँगा, ईगो पे नहीं लेना है. बस यहाँ पे आप लोग स्टक हो जाओगे. यदि आपने अपना 25 से 30 मिनट्स आपको ईजी प्रॉब्लम पे लगाना है, इसके बाद यदि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ईगो को साइड में रखने का एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि यदि आप 25-30 मिनट से ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में लगा दोगे तो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. माइंड माई वर्ड्स पॉइंट कर लो, लिख लो कहीं. फर्स्ट क्वेश्चन ईजी वाला 20 से 30 मिनट में सॉल्व करने का है. देन जो हमारा मीडियम वाला है वो 50 to 60 मिनट्स मैक्स, और जो हमारा हार्ड वाला है उसमें जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो हमें सॉल्व करना है. और 20-30 मिनट का बफर लेके चलना है फॉर टेस्टिंग, डीबगिंग एंड रिव्यूइंग सबमिशंस. ठीक है. एंड द बेस्ट पार्ट दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज कि भाई अपना अप्रोच सही रखना. ये मत सोचना कि मुझे कोड ऑप्टिमाइज्ड करना है. नो, यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन पासिंग द टेस्ट केसेस. क्योंकि कहीं भी इस दुनिया में या कहीं भी MNC में ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी ऑप्टिमाइज्ड कोड को ज़्यादा मार्क्स देगा या नॉन ऑप्टिमाइज्ड को नहीं देगा ना. यू हैव टू मेक श्योर दैट योर टेस्ट केसेस आर पासिंग. ठीक है. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू. ओके. और ये देखो मैंने बहुत हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा है, डोंट स्पेंड द एंटायर टाइम फाइंडिंग विद द वन क्वेश्चन. जस्ट नाउ आई मेंशन कि देखो आई एम गिविंग यू दैट सजेशन, बट मेरे रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ होती है. लाइक मैं कुछ कोड लिख रही हूँ, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आई स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट रेदर देन डूइंग सम अदर स्टफ. मैं क्या कर रही हूँ, उस पर ही अपना टाइम लगा देती हूँ. ये होता है, लिटरली होता है. दिस इज़ द ह्यूमन साइकोलॉजी. इसीलिए मैं आज तुम लोग को गाइड कर रही हूँ कि भाई यदि टाइम जा रहा है क्वेश्चन में, लीव दैट क्वेश्चन. मतलब ये मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे उस क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है. क्या पता तुम्हारा सिर्फ इजी क्वेश्चन ठीक है नहीं बना, बट माइट भी पॉसिबल मीडियम और हार्ड तुम फुल ऑन फुल सॉल्व कर दो. ठीक है. तो इसलिए कभी भी एक क्वेश्चन पे मत बैठना. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि कोडिंग क्वेश्चन पढ़ें कैसे. तुम्हें भी पता है दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग थ्योरी क्वेश्चन होता है जिसका हमें फिर सॉल्यूशन निकालना होता है. ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत लंबी होती है. तो पहले क्या करना, इनपुट, आउटपुट और कंस्ट्रेंट्स, इसको अच्छे से अपने नोट डाउन कर लेना. वहाँ पे हमें ब्लैंक शीट भी मिलती है.
सो यू कैन नोट इट डाउन कि हाँ मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। एक बार आपने माइंड मैप बना लिया, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। कैसे भी तुम लोग का क्वेश्चन ना हो जाएगा सॉल्व, यदि थोड़ा बहुत डीएसए आता है तो देन इट विल बी डेफिनेटली डूएबल, ठीक है। अब क्या करना है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है, और एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में अपनी प्रॉब्लम को माइंड में बैठाना है। दिस इज नॉट द थिंग कि ठीक है भाई इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, बट यदि हमारा हिंदी में माइंड ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है तो दिमाग में एक क्वेश्चन को बना लो ना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है, ओ ऑफ एन लगाना है, अप्रोच लगाना है, क्या लगाना है, सब कुछ आपको वहाँ से पता कर लेना है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, edge cases can decide your result, so never submit a solution after testing only the sample input, ठीक है। ये आपको कभी भी नहीं करना है। पहले बिफोर सबमिशन थिंक अबाउट द सिंगल एलिमेंट इनपुट, डुप्लीकेट वैल्यूज, नेगेटिव नंबर्स, ऑलरेडी शॉर्टेड एरेज, रिवर्स शॉर्टेड एरेज, वेरी लार्ज वैल्यूज, मिनिमम इनपुट साइज, मैक्सिमम इनपुट साइज, एम्प्टी और अनयूजुअल केसेस वेयर एप्लीकेबल। सो ये सब चीज़ें आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि एज केसेस छूटे तो यू आर आउट, ठीक है। मतलब बहुत चीज़ें अफेक्ट करता है एज केस, याद रखना। इफ़ यू आर अ बिगनर एंड आप लोग की प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, ठीक है, तो आप लोग एक हफ्ते में, आई डोंट से कि एकदम से प्रो मास्टर बन जाओगे। मैं जो PDF शेयर कर रही हूँ उससे तुम एकदम बिल्कुल फोड़ के आ जाओगे, नो। बट इफ़ यू आर समवन जिसने थोड़ा बहुत यदि DSA कर रखा है, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो आप लोग का गोल होना चाहिए एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, रेदर देन डूइंग द moving ahead on the next question and skipping, hovering here and there. No, don't do that. So if you are already strong in DSA, then what you have to do, you have to spend your time mostly on the advanced DSA sections like advanced dynamic programming, graph tree, these kind of things you have to study. Now for experienced candidate, the focus should shift from learning basic concepts to speed, pattern recognition and exam stimulation. So you have to do this thing. Now comes the next part, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। ऑन द एग्जाम डे वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टे कूल एंड काम, ठीक है। एग्जाम की एक रात पहले से पढ़ना छोड़ देना, दिस इज़ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि जिसमें एक रात पहले पढ़ना है, नो। यदि आपने साल भर पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू डू, वरना एक रात पहले पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, एक रात पहले ना भाई चिल रहो, घूमो फिरो, जो करना है करो, मूवी देखनी है मूवी देख आओ, लेकिन पढ़ना मत, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी, जैसे आपका स्क्रीन ऑन होगा, क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वेश्चन आया, नहीं समझ आ रहा है, तो बिल्कुल तोते नहीं उड़ाने की अरे यार शिट ये क्या हो गया, नो, बिल्कुल ये नहीं करना है, ठीक है। नहीं आता तो नहीं आता भाई, क्या कर सकता, नहीं बन रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो कभी भी होप्स लूज नहीं करनी है फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते से, ठीक है। और टाइम को हमेशा वॉच करते रहना कि हाँ भाई कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। और don't try to learn completely new topics before the night of examination, just now I said you, रिवाइज करना थोड़ा बहुत और बढ़िया अपना घूमना फिरना, पर एक रात पहले पढ़ना मत, ठीक है। और जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेना, नहीं तो बोलेंगे कॉर्पोरेट दीदी ने कहा था नहीं पढ़ना, बट दिस इज माई स्ट्रैटेजी। मैं कभी भी एक रात पहले नहीं पढ़ती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप माई माइंड कूल काम, ताकि मैं नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। इवन मैं ज़्यादा सोती हूँ एक रात पहले, ताकि मेरा माइंड दूसरे दिन फ्रेश रहे, मैं अच्छे से सोच पाऊँ, मतलब क्वेश्चन दिखे तो मुझे समझ आए, ठीक है। नाउ कम्स दी नेक्स्ट पार्ट, थर्ड राउंड होगा जो होगा सेकेंड राउंड के बाद, तो उसमें आप लोग को मैं बता दूंगी क्या क्या प्रिपेयर करना है। उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो अलग से बना दूंगी, और ये वीडियो लिटरली मैंने बहुत सारा मतलब एफर्ट्स डाल के बनाया है। ऑनेस्टली गाइज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, एंड अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठी थी बेसिकली, बट आई गॉट सो मेनी क्वेरीज की दीदी प्लीज़ बना दो यार, प्लीज़ बना दो, कोडिंग राउंड के लिए क्या पढ़ना है बना दो। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड ऑनेस्टली मैं ऑफिस में बाहर बैठी हुई हूँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यदि मैं थोड़े एफर्ट्स कर रही हूँ तो आई वॉन्ट बैक फ्रॉम यू गाइज एज वेल। और देखो फाइनल स्ट्रैटेजी यही होने वाली है, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और कीप प्रिपेयरिंग, आई वुड से अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं दोनों PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और बेस्ट पार्ट ये कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम नॉट इवन चार्जिंग अ सिंगल रुपीज़ टू यू गाइज, बट हाँ आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू कि तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करना, बिकॉज दिस वीडियो लिटरली टुक सो मैनी एफर्ट्स टू मेक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो गाइज। टिल देन अच्छे से पढ़ो, अभी एक हफ्ता है प्रॉपर तुम लोग के पास अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। सो डोंट वेस्ट टाइम। जिसका भी 5 और 6 सितंबर को एग्ज़ाम है, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दो और पढ़ते रहो, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करो। रक्षाबंधन भी आ रहा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई कर लेना, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द जॉब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।